محمد علی کیا کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی پہ چیرا کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے اس کو۔ بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی، وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں، تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے، مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے سخت افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95۔ یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ قرآن کو تو ایسا ماڈل بنا لیا، بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی دلیل۔ پہلے تو امام جلال الدین سیوطی پہ اس نے تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیوطی صاحب نے دیکھیں اپنے مولویوں کے لیے تو شیخ علامہ مولانا، لیکن امام زمانہ ہے وہ امام جلال الدین سیوطی، اور جن کا جب بھی نام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتہ ہے؟ جلالت العلم، حافظ الخاتم الحفاظ، یہ القابات لکھے اعلیٰ حضرت نے۔ اور ان کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ 63 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کو کی زیارت کی ہے، بیداری میں۔ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی کا مقام۔ مگر ان کی بد زبانی دیکھو، اب جو نبی کا ادب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے یار۔ سیوطی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی اور اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ ابے تم سے بڑا تو مکار اور جھوٹا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سیوطی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہر تھے، اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ تو کہتا اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پہ تو کیا کام دیں گا، جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دوبارہ زندہ کرے۔ جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے، جاہلوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں غیر مقلد وہابی اور دیوبندی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ مناظرہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، اس لیے مناظروں میں نہیں بیٹھتے گے۔ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب انہیں موت دے تو دوبارہ زندہ کرے۔ یہ کن کے لیے آیا؟ وہ بستیاں جو کفر پر مری، جن پر عذاب آیا، یہ ان کے لیے نہیں جو اہل ایمان ہے۔ ورنہ آئیے پارہ نمبر 3، قرآن کا جواب اب قرآن سے ہی دے رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 59، حضرت عیسیٰ کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں جو مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جب زندہ ہوا تو مرنے کے بعد آیا کہ نہیں آیا دوبارہ؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأُحْيِي، عیسیٰ نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں وہ جو مردے جلاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور آئیے ابن کثیر انہی کے علامہ ہیں، انہوں نے قصاص الانبیاء کتاب لکھی، میں صرف اس کا اسکین پیج دکھا رہا ہوں جو سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، اور اس کتاب کی خاص بتا دوں، ایک آتی ہے قصاص الانبیاء جو غیر معتبر ہے، اردو زبان میں جو ملتی ہے عموماً، یہ معتبر نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ قصاص الانبیاء، اس پہ مصنف کا نام بھی عجیب و غریب ہے، بعض نسخوں میں تو نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو قصاص الانبیاء سعودیہ نے چھاپا ہے، اور یہ ابن کثیر کی ہے، حافظ ابن کثیر کی، اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی روایتیں لکھی سب صحیح روایتیں لکھی، ایک بھی ضعیف روایت نہیں لکھی، ایک بھی ضعیف نہیں۔ کہتے میں نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے انبیاء کے واقعات میں غلو کیا اور جھوٹے قصے کہانی گڑھ دیے، تو میں نے چاہا کہ ان کے جواب میں ایک صحیح حدیثوں پر مشتمل انبیاء کے حالات پر کتاب لکھوں، تو میں نے اس میں جتنی روایتیں لائی سب صحیح، ایک بھی ضعیف نہیں لائی۔ اب قصاص الانبیاء میں انہوں نے کیا لکھا یہ دیکھیے، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، یہ پورا اسکین پیج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ہیں، اور فرماتے لوگ اے میرے حواریوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی۔
तूफान कैसे आया, तूफान नूह का जिक्र कर रहे हैं, तूफान ऐसे आया, कश्ती में इतने लोग सवार थे, ये थे। हवारी सुन रहे बड़े दिलचस्पी से, तो बाज हवारी कहते हैं ईसा आप तो तूफान नूह के वक्त मौजूद नहीं थे, आपको यह खबर किसने दी? कहा ये मुझे जिब्रील ने बताया। कहा कितना अच्छा होता कि हम में वो शख्स तूफान नूह की खबर बताता जो उस कश्ती में सवार था, जो चश्मदीद हालात का देखने वाला हो, वो बताता। हजरत ईसा मुस्कुराया, कहा चलो आओ मेरे साथ। एक वादी में लाए और वादी में आके ईसा मसीह क्या करते, ये नबी के इल्म गैब पे सवालिया निशान लगा रहे, जरा ईसा का इल्म गैब देखे आप। नबी के गुलाम है ईसा। एक जगह गए मिट्टी उठाया, एक जगह लाके रख दी, फिर कुछ कदम चल के गए वहां से मिट्टी उठाया, फिर लाके रख दी, फिर कुछ कदम चल के गए वहां से मिट्टी लाया, जमा किया, मिट्टियों का ढेर लगा रहे। आपके हवारी देख रहे हैं, पूछा ईसा ये क्या कर रहे हैं? फरमाया काब बिन हाम बिन नूह की मिट्टी को जमा कर रहा हूं। ये काब कौन थे? हजरत नूह के पोते, हाम हजरत नूह के साहबजादे, हाम के बेटे। यानी ईसा मसीह को यह भी मालूम कि काब की मिट्टी कहां कहां बिखरी हुई है, और वो जमा किया। जब जमा हुई तो हाथ फेर का कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो हाम बिन नूह मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हुए सरों से, बाल से, और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या ईसा रूहुल्लाह। आपने जवाब दिया तो हवारियों ने कहा आपने कैसे जाना ये ईसा रूहुल्लाह है? अब दूसरा इल्म गैब देखे तो काब इब्न हाम कहते हैं कि मुझे मेरे दादा नूह ने खबर दी थी कि तेरे मरने के बाद एक शख्स तुझे जिंदा करेगा, वो रूहुल्लाह होगा और अल्लाह का नबी होगा। ये जिंदा करने का काम नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये नबी है, मैं जान गया। कहा ईसा आपने क्यों जिंदा किया? कहा ये मेरे हवारी, जरा बताओ कश्ती का क्या मामला था सब, जरा बताओ इनको। बताया उन्होंने, कश्ती ऐसी थी, इतने फ्लोर की थी, ऐसा था, ये था, ये था, वगैरह वगैरह वगैरह। सारे हवारियों ने सुना। उसके बाद हवारी कहते हैं कि ईसा मसीह अगर आप इजाजत दे तो हम इन्हें अपने घर ले जाए और इनकी दावत करें, इनकी दावत करें। तो हज़रत ईसा ने कहा कि इन्हें दावत की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये जन्नत की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं, अब दुनिया के खानों की इनको हाजत नहीं है। और उसके बाद कहा है काब अब काम खत्म हो गया, अब आप दोबारा जिस हालत में थे वैसी हालत में चले जाइए। तो कहा ईसा एक वादा कीजिए कि जब पहली मर्तबा मौत आई थी उसकी तकलीफ अब तक मैं महसूस कर रहा हूं, अब अगर मुझे अब मौत आए, अब मुझे दोबारा उस हालत में लौटाया जाए तो वो तकलीफ ना हो। तो हजरत ईसा ने कहा मैं वादा करता हूं, और फरमाया मुंह तू मर जाओ। वो मिट्टी का ढेर फिर हो गए। यानी ईसा का यह भी इख्तियार बताया कि वो चाहे तो मौत की सख्ती को भी खत्म फरमा दे, ये नबी का इख्तियार। ये इब्ने कसीर ने लिखा, और आप कह रहे हैं जो मर जाए वो आ नहीं सकता। अच्छा अच्छा चलिए भाई, अब एक ऐसी दलील दे रहा हूं, हजरत मूसा की कब्र जमीन पे है कि जन्नत में? अरे कहां है? जमीन पे है ना। बुखारी मुस्लिम, इतनी हदीस की किताबें देखेंगे आप थक जाओगे, बुखारी मुस्लिम दो काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते मररता अला कब्री मूसा वह हुआ कायम युसल्ली, शबे मेराज में मूसा की कब्र पर गया, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो मूसा दुनिया में है। अच्छा चलो, आप कहते मरने वाला आ नहीं सकता, अब एक ऐसी दलील दे दूंगा कि इसका बाप भी नहीं इनकार कर सकता। शबे मेराज सारे अंबिया नमाज पढ़ने आए थे कि नहीं आए थे? एक दो आए थे, तो दोबारा विसाल के बाद आए या नहीं आए? तो आ सकते हैं। तो ये दलील बचकानी है। अरे जब ईसा मुर्दे जिला सकते तो नबी अपने माँ बाप को जिंदा फरमा दे तो इसमें क्या ताज्जुब है? लेकिन इनकी बदबख्ती देखो कि माज़अल्लाह, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा तो उस पर भी उसने जिरा कर दी। हालांकि अब मैं एक फाइनल बात कर रहा हूं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती को तो खामोखा टारगेट कर रहा है और अपनी भड़ास निकाल रहा है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती से ये इतना चिढ़ते, क्यों चिढ़ते मालूम है इसकी वजह? इमाम जलालुद्दीन सयूती की खासियत है कि उन्होंने इश्क की और अहले सुन्नत की तायीद में खूब हदीसों को जमा किया है जो इनके अकीदे के खिलाफ जाती है। चुनांचा देखिए वो इमाम जलालुद्दीन सयूती पर जिरा करते हुए कितना अपना गुबार निकाल रहा है, ये भी क्लिप सुनी लीजिए। कहते हैं और इमाम सयूती कहते हैं, जबकि मेरे नजदीक उनके अकायद हैं। अब जलालुद्दीन सयूती वो हैं जिनको अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बरेलवी भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, देवबंदी भी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सयूती कहते हैं, जबकि मेरे नजदीक उनके अकायद के अंदर बहुत फसाद मौजूद था। ये बहुत बड़ा तुर्रम खा पैदा हो गया। इसकी औकात क्या है बे? तेरा तो अकीदा ही नहीं है, फसाद तो छोड़ो, तेरे अकीदे तो गटर का पानी है।
नाले का गू है, तेरा अकीदे की क्या औकात है भी? इमाम जलालुद्दीन सयूती को अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते, यानी वो अहले हदीस जो जानने वाले वो रहमतुल्लाह, वो भी बेवकूफ, यही अकलमंद पैदा हो गया, यही उल्लू माँ का खपती बेटा भी पैदा हुआ है, ये ऊपर से टपका। सही बोल रहे हैं आप, खुद वो इकरार है कि अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते। बेटा वो इसलिए बोलते कि वो वक्त के इमाम है, मुहद्दिस है अपने वक्त के। कहते हैं बरेलवी भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते, देवबंद भी, लेकिन मेरे नजदीक उनके अकायद में बड़ा फर्क है। तेरी औकात कौन है? तू है कौन बे? तेरे नजदीक तेरी सनत क्यों? और तू तो बोलता अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, तेरी तकलीद कौन करेगा? तेरी क्यों माने? तो तुम्हारी क्या हैसियत है इल्म में? आप तनकीद करते देखो क्या क्या है। इवन ये जो शेख जिक्रिया का वाकया है कब्र से हाथ बाहर निकालने वाला, ये स्यूती ने नकल किया है। अच्छा, ये भड़ास है। मौलवी जकरिया जो है ना, फजाइल अमल जिसने लिखी, देवबंदियों का अलीम, उसने एक वाकया लिखा कि हजरत क्या नाम है उनका, शेख अहमद रफाई, वो रसूलुल्लाह के रोजे पे गए, सलाम किया तो अल्लाह के नबी का हाथ बाहर आ गया, उन्होंने दस्त बोसी की। इस पर उसको बड़ी तकलीफ हुई, हाथ कैसे आ गया? नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। तो क्या अकीदा तो यही है खबीसों का। तो चूंकि उन्होंने ये वाकया लिख दिया तो अब इसको तकलीफ हो गई, कहा वो वाकया उन्होंने ही लिखा, इसलिए उनके अकीदे में फसाद है। तो यही वाकया इब्ने कसीर लिखे, अगर के काब बिन हाम बिन नू को जिंदा करे तो उनके अकीदे में क्यों नहीं है फसाद? और हजरत ईसा कहे मैं मुर्दों को जिलाता हूं तो हिम्मत करके बोल दे उनके भी अकीदे में फसाद था। तू ही एक बड़ा अच्छा पैदा हो गया नमूना आज का। शेख जिक्रिया ने बेचारे ने तो उसे उठाया है, ये असल जो मामला है ये तो स्यूती का किया हुआ है। इस किस्म के बड़े मामला, उनकी किताब शरह सुदूर फिल अहवाल कुबूर, उसमें तो उन्होंने अजीब और गरीब वाकयात स्यूती ने लिखे हैं कि हुजूर की वफात के 500 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत किसी बुजुर्ग का जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोले तो इसकी ये रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ने आ गए, इसको बड़ी तकलीफ हो गई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अंबिया, वो बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने आ गए, उस पर उसको प्रॉब्लम नहीं है। अगले देखो, अकले देखो, सल्ब हो गई। यानी आदम तो आ सकते हजारों साल बाद, लेकिन नबी करीम 500 साल बाद नहीं आ सकते। आदम आ सकते, हजरत शीश आ सकते, सारे अंबिया आ सकते, लेकिन नबी अगर अपने विसाल के 500 साल बाद आ गए, अबे 500 साल बाद छोड़ो। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक वली की फजीलत में वाक़या शरह सुदूर में लिखा है, एक वली की कि उनके जनाजे में सरकार तशरीफ लाए। लेकिन हमारा तो अकीदा ये कि जब चाहें आप जिस मजलिस में चाहे तशरीफ लाए। इसलिए हम कहते हैं सुना है और हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत मसलक आला हज़रत, हमारा तो ये अकीदा है भाई। वो बड़े दो मलाइक से कहानी लिखने में इमाम सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी होने के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली तो इस किस्म की वो बड़े दो मलाई किस्से कहानी लिखने में इमाम सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी मशहूर है। इस तरह वो बड़े मलाई के किस्से लिखने में मशहूर है। मलाई तो वही तो, मलाई से तुमको एनर्जी है, मलाई तो सुन्नियों के लिए है ना, ये बात तो सही है। मलाई किसके लिए है? सुन्नियों के लिए, तुम्हारे लिए गडर का पानी। और चूंकि ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों के नजदीक शेख जुबैर अली ज़ई साहब बहरहाल उनसे ऐलान बरात करते थे, क्योंकि अकल ना हुए थे मौजे ही मौजा, अकल हुए थे सोचे ही सोचा। उनको चूंकि अकल थी, उनको पता था कि सयूती साहब ने क्या कारनामे अपनी किताबों में किए हुए हैं, तो वो ऐलान बरात करते थे। और मेरे इंटरव्यू में जब मैंने सयूती का नाम लिया, उन्होंने कहा जी छोड़ो, उनकी बात ना करो हमारे सामने, हमें किताब सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करो। तो जुबैर अली रीच है, अभी दिखाऊंगा मैं रीच को। रीच बाले बड़े बड़े उसके, ऐसा लगता है चांडा मेटा के जंगल से निकल के आ गया है। वो उसके उस्ताद है। कहता है वो जलालुद्दीन सयूती का उनके सामने जिक्र करो तो कहते अरे छोड़ो, हमारे सामने बात मत करो उनकी, जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खाते हैं आज के नमूने। अब आइए एक दूसरी जो दलील है, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह के वालिदैन का जिंदा किया जाना, ये सिर्फ इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तन्हा नहीं नकल किया है कि जो सयूती के ऊपर आप ये सब भांडा फोड़ रहे हो और ये सब वबीला मचा रहे हो। इस हदीस को रिवायत करने वाले और भी इमाम है जो इमाम जलालुद्दीन सयूती से कई 100 साल पहले के भी है और मोतबर मुस्तनद इमाम है। उसमें इमाम इब्ने हजर मक्की है जिन्होंने अफजलुल क़ुरा में यह वाक़या लिखा। इमाम इब्ने शाहीन है, इन्होंने भी लिखा। हाफिज इब्ने अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा।
امام ساحلی نے اس کو لکھا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کے ہیں، حضرت امام محب طبری نے لکھا، ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام زرقانی نے لکھا، حالانکہ امام جلال الدین سیوطی کے بعد کے لیکن معتبر اپنے وقت کے مجدد ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ پلیز اکرام الحق چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔